slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my... नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? और आज की एक नई वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन सर्विस होता क्या है। हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे कि ऑनलाइन सर्विस। मेरे पास एक रियलमी का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, मुझे ऑनलाइन कराना है। मेरे पास एक एमआई का फ़ोन है, उसका एमआई अकाउंट लगाओ, वो अनलॉक कराना। तो ये है क्या ऑनलाइन सर्विस? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है और बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है और काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। बहुत सोचा था इस वीडियो के बारे में, और जब ये वीडियो बनाई है मैंने, और एक तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और इस वजह से ये वीडियो लेट बन पा रही है। और आप सब लोगों के भाइयों के लिए एक गिफ्ट है, और गिफ्ट है ये मेरी तरफ से। ये UMT के 5 हार्डवेयर टूल हैं जो ये गिव अवे कर रहा हूँ मैं, और आप जीत सकते हो। ये बिल्कुल आसान तरीका है, और इसके ऊपर एक वीडियो बाद में मिलेगी आपको, और इस वीडियो को जस्ट बाद में मिलेगी कि आपको ये कैसे मिलेगा। हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि ऑनलाइन सर्विस होता क्या है और इसे कैसे अनलॉक करें। जैसे कि मेरे पास कोई फ़ोन आया, हमारे पास फ़ोन आया कोई ओप्पो, वीवो, रियलमी, MI, सैमसंग का कोई फ़ोन आया, और वो हमसे हो नहीं पा रहा, या हम बड़ी मेहनत कर चुके और उसका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा, तो वो सॉल्यूशन किसी और के पास है। और उस सॉल्यूशन को कराने के लिए हम एक दूसरे बंदे से कांटेक्ट करते हैं जो हमसे सीनियर हो, या उसके पास वो सर्विस हो, ऑथराइज सर्विस हो, वो सर्विस सेंटर ऑथराइज सर्विस होती है। तो हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद में पहले उनसे पैसे की बात हो जाती है, मेंशन हो जाता है कि भाई इतना चार्ज लूँगा मैं और कर दूँगा, और वो आपके सिस्टम से वहीं बैठे बैठे हो जाएगा। तो देखो, ये सारा प्रोसेस ना एक कंप्यूटर से कंप्यूटर का है, और एक मतलब जो सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है वो निभाता टीम व्यूवर की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जो हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, और हम या ऑनलाइन सर्विस लेते हैं या देते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूमिका टीम व्यूवर की होती है, तो इसी से ही सारा मैनेज होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टीम व्यूवर की सबसे बड़ी भूमिका होती है अपने कंप्यूटर में और ऑनलाइन सर्विस में देने के लिए। मतलब ये एक ऐसा सेटअप है, ऐसा टूल है कि मतलब किसी भी फ़ोन को कहीं से कहीं किसी बंदे को जोड़ देता है। ठीक है, इसमें ये बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो भाई उन फ्रॉडों से बच के रहो जो आपके साथ फ्रॉड होता है, और
भाई मैंने ग्रुप में चैट किया, एक ग्रुप में किसी बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, ये वो मेरा 1800 रुपये लेके भाग गया और काम नहीं कर रहा, ब्लॉक कर दिया, ये कुछ कर दिया। मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन सर्विस देते हैं और जो मेरी नज़र में ठीक है मेरी नज़र में, और मैं गारंटी नहीं लेता उनकी, बाकी ये मैंने उनसे काम करवा रखा और बड़े अच्छे तरीक़ा से वो मेरा काम करते हैं। इस वजह से नहीं करते कि भाई वो ग्रुप एडमिन हो या इतने बड़े यूट्यूबर हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो सब काम पैसे से होता, मैं भी पैसे देता हूँ। अगर किसी भाई के पैसे नहीं दिए हों तो गलती, ठीक है मतलब किसी मनीष भाई के या विजय भाई के कोई उनके, चलो मैं चलता रहता हूँ उनसे, ठीक है। और वो सारे नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में, किसी भी ग्रुप में आप जुड़ोगे तो उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसके अंदर मैंने नंबर मेंशन कर रखा। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप उन पे विश्वास भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई बात कालकला हो जाती है या वो बंदे कभी फ्रॉड नहीं करते, उनका काम ही है ऑनलाइन सर्विस का, ठीक है, तो उनसे आप पर्सनल ही बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी भूमिका थी जो मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन सर्विस कहाँ से ले ली है और कैसे कैसे, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज़ सिंपल सा सबको समझा देता हूँ। हमारे पास कोई फ़ोन आता तो एक छोटा सा ही चैप्टर समझा देता हूँ। देखो ऑनलाइन सर्विस क्या, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ओप्पो, रियलमी, वीवो, नोकिया, रेडमी, एमआई, सैमसंग, तो ये कुछ मॉडल हैं जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ोन हैं और हर महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद इनका सिक्योरिटी पैच होता है जो हर बार अपडेट होता रहता है। तो मतलब हम कितनी भी कोशिश करें, हम इतनी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं उसका बाईपास करने के लिए, लेकिन कंपनी वाले क्या होते हैं, देखते हैं कि भाई इसका तो ये सॉल्यूशन निकल गया, इन बंदों ने ढूंढ दिया तो इसको अपडेट करो। तो वो हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, 6 महीने में भी, साल भर भी लग जाते हैं, तो वो उनको अपडेट करते रहते हैं, जिससे उनका सिक्योरिटी पैच अपडेट हो जाता और एक हाई लेवल पे अपडेट कर देते हैं कि हम उनका बाईपास ना कर पाएँ। लेकिन अभी कुछ पंगा इशू है जो हम अब भी कर लेते हैं, बहुत ढूंढ ढांड के, जो बहुत तरीका अपनाते हैं, जो मतलब हार के बाईपास हो जाता है। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहते हैं, मतलब झंझटबाजी, सिम पिन डाली या लॉक किया या डबल टैप किया या कुछ और किया, मतलब वो ये चाहते हैं कि हम काम करें और बड़े अच्छे तरीक़ा से करें जो 5 मिनट में, 10 मिनट में काम हो जाए। देखो ऑनलाइन सर्विस वो ही बंदे देते हैं जिनके पास ऑथराइज सर्विस होती है। ये जो सारी सर्विस है ना, ये सारी सर्विस हैं, ये सब सेंटरों की सर्विस होती हैं, सर्विस सेंटरों की सर्विस होती है। और ये जो वो कांटेक्ट करते हैं किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर से, और वो पैसों में डील होती है, बहुत बड़े बड़े पैसों में डील होती है, तो इस वजह से हम ये सर्विस नहीं ले पाते। मैंने भी नहीं ले रखी कोई सर्विस, मैं भी ऐसे ही काम कराता हूँ। तो ये एक बहुत बड़े लेवल की बात है, और बड़े लेवल की मतलब इतनी बड़ी बात है कि पर डे जो ये बंदे ऑनलाइन सर्विस देते हैं, रियलमी, ओप्पो वगैरह की, तो उनके पास ये सर्विस आती है और वो काम करते हैं, उन्हें भी आगे पैसा देना होता है वो जब भी ये सर्विस देते हैं। ये सब सर्विस सेंटर की ऑथराइज सर्विस होती हैं। तो अब एक चीज़ सोच लो, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि ओप्पो और रियलमी, ये दो फ़ोन ऐसे हैं, ये ऑनलाइन होते हैं चाहे ऑफलाइन भी होते हैं। ऑफलाइन क्या होता है कि ऑफलाइन खोल के टाँके लगा के ISP पिन आउट से करते हैं, USB के थ्रू नहीं होते ये फ़ोन, ठीक है। अगर USB के थ्रू ये फ़ोन करने हैं तो सर्विस सेंटर पे होते हैं, वो सर्विस सेंटर से होते हैं ये दोनों फ़ोन। लेकिन सर्विस सेंटर बंदा जाए ना जाए और वो काम आपको अपनी दुकान पे करना, तो वो किसी सामने वाले से कांटेक्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है। अब आपके पास आ गया कोई ओप्पो का फ़ोन, तो सभी भाइयों को मैं बता दूं कि ओप्पो की सर्विस अभी ऑल इंडिया ऑफ है। जो हम तरह के जो डीलर होते थे वो ऑथराइज सर्विस ले लेते थे, तो अभी वो किसी की नहीं है, क्योंकि ओप्पो का सबसे पहले IMEI नंबर अप्रूव कराना पड़ता है। वो जब अप्रूव हो जाता है, जब उस फ़ोन को वो अनलॉक करते हैं या फ्लैश करते हैं, ठीक है। ओप्पो का कोई बंदा ये बोले कि मैं सर्विस दूंगा, तो बोलना कि पहले काम करो उसके बाद पेमेंट दूंगा, ठीक है। आप कोई भी फ़ोन या अनलॉक कराते हैं या कोई भी कराते हैं, जितने भी भाई हैं जो भी हैं कराते हैं,
सबसे पहले सामने वाले से कांटेक्ट करो कि भाई पहले फ़ोन को अनलॉक करो, उसके बाद पेमेंट दूंगा। अगर वो भाई इस बात से मेंशन हो जाता एग्री है तो आप देख लो। और किसी बंदे के साथ ऐसे फ्रॉड नहीं होगा। जब आप किसी पर्सनल में जाके उससे चैट करते हो, ये करते हो, फलाना ढेंका ये मेरा फ़ोन अनलॉक कर दे, बोलने लगता पहले हाफ पेमेंट दे दो, बाकी बाद में दे देना काम करने के बाद। उसने हाफ पेमेंट ले ली, आप पेमेंट लेने के बाद आपको ब्लॉक मार दिया, ना कॉल उठाएगा ना रिसीव करेगा। फ्रॉड हो गया आपके साथ। अब क्या करेगा ग्रुप एडमिन, क्या करेगा मुझे बता दो। कुछ कर सकता है क्या ग्रुप एडमिन? बात हो रही है आप दोनों की, तो ग्रुप एडमिन बीच में क्या करेगा बताओ। ग्रुप भाई किसी के माथे पे ये नहीं लिखा कि ये बंदा चोर है, मेरे माथे पे लिखा वो चोर, मैं पैसा लेके भाग जाऊं, कहीं मर आ जाऊं, तो क्या कुछ हो सकता है? जिस भाइयों के मैंने ऑर्डर ले रखे हैं उन्होंने, वो तो बोलेंगे कि मैंने तो पैसे दिए थे, तो उनके साथ क्या होगा? तो भाई देखो, थोड़ा सब्र होना ज़रूरी है। और दूसरा नंबर, सोच समझ के ये काम किया करो। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर रखे हैं, आप सबसे पहले उनसे मेंशन करो, उनसे बात करो, पूछो, चैट करो। अगर वो एग्री करते हैं तो करो। अगर कोई तीसरा बंदा आपसे आके बोलता है कि मैं करके दूंगा और पेमेंट की डिमांड करे, तो भाई पेमेंट बिल्कुल मत देना, मना कर देना कि भाई मुझे तेरे से काम नहीं कराना। ठीक है, तो ये बात तो होगी। अब आ जाओ रियलमी की सर्विस। ठीक है, रियलमी और ओप्पो, अभी तो ओप्पो ऑफ है, बाई चांस कभी ऑन हो जाए तो ओप्पो और रियलमी के फ़ोन के लिए सबसे पहले तो उस फ़ोन, जो भी कोई फ़ोन आपके पास आता, उस फ़ोन की फाइल आपके सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। जब तक वो उस फ़ोन की फ्लैश फाइल आपके सिस्टम के अंदर नहीं होगी तो वो आप अनलॉक नहीं करा सकते। वो चाहे 4 GB की हो, चाहे 10 GB की हो, चाहे 12 GB की हो। ठीक है, ओप्पो तो आप कहीं नहीं करा सकते, रियलमी तो करा सकते हो। रियलमी का कोई भी फ़ोन आता, C1, C2, C3, 5i और रियलमी X, अगर बहुत तेरे मॉडल हैं, जो बहुत सारे मॉडल हैं जिनकी 2-2 GB 3-3 GB की फाइल भी है और 5-5 10-10 GB की फाइल भी है। ठीक है, बहुत से भाई फ़ोन करके तुरंत बोल देते हैं कि मुझे ये फ़ोन अनलॉक कराना होता, वो सामने वाले से पैसे की बात भी हो जाती है, लेकिन एंड में आता भाई फ्लैश फाइल ही डाउनलोड नहीं की। कोई भी फ़ोन आपके पास रियलमी का फ़ोन आता है अनलॉकिंग के लिए, तो सबसे पहले उस फ़ोन की फाइल डाउनलोड करो। CPH ओप्पो होता, RMX रियलमी होता। ठीक है, सबसे पहले कोई भी सेट आए तो उसका मॉडल चेक करो। मॉडल स्टार हैज 899 हैज। सॉफ्टवेयर वर्जन में जाओ, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन होता है या वर्जन होता, जो भी होता, उसके आगे CPH और या RMX आ जाता, उसी हिसाब से उस फ़ोन की फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लो। ठीक है, रियलमी और ओप्पो का फंडा समझ में आ गया कि कैसे होता है। अब आ जाते हैं हम वीवो का। आज की डेट में कुछ मॉडल ऐसे हैं जो होते नहीं, बाकी सारे मॉडल UMT MRT से हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ नए मॉडल हैं, S1 Pro हो गया आपका, और B15 Pro हो गया, U20 भी MRT से होने लगा, UMT से भी होने लगा, और अभी U10 रह रहा। तो मतलब भी कुछ मॉडल ऐसे हैं जो वो अभी किसी से भी नहीं हो रहे। अगर वो सर्विस आपको लेनी है तो आपको कोई फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सर्विस सेंटर के ऑथराइज से होगा। और वो कैसे होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट होता है ना, उसकी स्पीड कम से कम 40-50 Mbps की स्पीड होनी चाहिए। तो जब भी आप वीवो का फ़ोन अनलॉक करा सकते हो, जो बड़े मॉडल हैं उनको, और जो छोटे मॉडल हैं वो हर कोई कर देता UMT MRT से या डोंगल शेयर करके या वैसे करके। ठीक है, वीवो का तो फंडा ये भी समझा दिया मैंने आपको कैसे हो गया। तो अब आ जाते हैं नोकिया का कोई भी फ़ोन आएगा तो उस फ़ोन की फ्लैश फाइल आपके पास होनी चाहिए। वो पासवर्ड मांगेगा, वो जो ऑथराइज सर्विस वाला होता वो डाल के देगा आपको। पैसे की बात करो, मेंशन करो, सब सारा के लिए ये हो जाएगा आपका। तो देखो अब रेडमी का क्या होता है। रेडमी सब FRP कर लेते हैं, पैटर्न अनलॉक कर लेते हैं। सबसे बड़ा आता है MI अकाउंट। MI अकाउंट नहीं हो पाता। MI अकाउंट 2 तरीक़ा से होता है। एक तो होता है MI के फ्लैश टूल से होता है कि जिसमें अकाउंट लॉगिन करके जब होता है, या वो कॉम्पोर्ट शेयर करके होता है। ठीक है, तो MI अकाउंट में भी ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, और नॉर्मल स्पीड से MI अकाउंट रिमूव हो जाता है। उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी फाइल की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सामने वाला जो आएगा, पैसे की बात करो और फंडा के लिए, मतलब जितने की पैसे की आपकी बात हो रही है सामने वाले से, तो उसी हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। MI अकाउंट का हल्का सा है, दम में हो जाता है। अब आता है हमारा सैमसंग का, सबसे लास्ट ऑप्शन सैमसंग का। सबके पास सैमसंग के फ़ोन आते हैं, किसी के पास नहीं आते तो एक अलग बात है। बाकी ये कहना चाहता हूँ कि हम
बार बार पिन वगैरह 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 वगैरह, एक मतलब अलग तरीका का रिसर्च हो गया सैमसंग की FRP करना। तो अगर FRP करनी है सैमसंग की दो तरीका से होती है। तो पहले नंबर पे आते हैं कॉम्बिनेशन फाइल और उसके बाद फ्लैश। अगर ये बंदे जो मतलब बहुत ज़्यादा माइंडेड आदमी हैं तो वो तो कर सकते हैं इसे कॉम्बिनेशन फाइल से और इससे, ठीक है। उसमें भी फंडा, पहले तो 500-600 MB की कॉम्बिनेशन फाइल करनी, उसके बाद 3 GB या 4 GB की फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी, ठीक है। उसमें भी डबल ट्रिपल, कभी ऐसा भी होता है कि कॉम्बिनेशन फाइल नहीं चलती, तो इसमें भी बहुत बड़ा रीजन है। और जो दूसरा है वो है डायरेक्ट सर्विस सेंटर से। जो सैमसंग के फ़ोन आपको अनलॉक कराने हैं वो एक फ्लैक्सी हब सॉफ्टवेयर होता, 10-12 MB का होता, मुझे ध्यान नहीं है किया वो, मुझे ध्यान नहीं, पर पता नहीं कितनी MB का मैंने चेक नहीं किया। तो फ्लैक्सी हब सॉफ्टवेयर आपके PC के अंदर होना चाहिए और सामने वाले से कांटेक्ट करो। जितने पैसे मैं पैसे नहीं बताऊंगा किसी को भी, ठीक है। तो और फ्लैक्सी हब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद में सामने वाले से कांटेक्ट कर लो। उसमें भी कोई ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल स्पीड से हो जाता, पर लेकिन इंटरनेट की स्पीड अच्छी ठीक ठाक होनी चाहिए, कम से कम 4-5 Mbps की स्पीड होनी चाहिए, जब भी आपका काम ये ऑनलाइन वाले काम हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। दिक्कत होगी, कहीं बीच में रुकेगा, कभी कर्सर नहीं चलेगा या कोई इमेज कट के आएगी। तो ये नॉर्मली स्पीड भी होनी ज़रूरी है, बिना नेट की स्पीड के कुछ नहीं होगा, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। और TeamViewer सबसे पहले आपके सिस्टम में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारा फंडा मैंने आपको समझा दिया कि ऑनलाइन सर्विस होती क्या है और कैसे इसे अनलॉक करें। तो मैंने आपको बताया कि आपके सिस्टम में उस फ़ोन की फ्लैश फाइल होनी ज़रूरी है। ओप्पो, रियलमी, बस ये 2 फ़ोन ज़रूरी हैं जिनको ऑनलाइन सर्विस फ़ोन कराने होते हैं, तो वो इसी तरीक़ा से होते हैं। लेकिन अभी ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है, इंडिया के अंदर। सर्विस सेंटर जाओ, वीवो के जाओ, ओप्पो के जाओ, रियलमी के जाओ, ये कंपनी वाले फ़ोन आपको फ्री में अनलॉक करके देंगे। कंडीशन बिल होना चाहिए या डिब्बा होना चाहिए, ये जब ही होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे हरियाणा के अंदर कोई 1 रुपया नहीं लेता, कोई सर्विस सेंटर वाला फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता। आप अपने कस्टमर से, जिस प्रोवाइडर का आपका फ़ोन है उस प्रोवाइडर से फ़ोन करके पूछो कि मुझे मेरा फ़ोन में लॉक लग गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट कराना है, तो वो इसी राय को देंगे कि वो सर्विस सेंटर जाओ और फ्री में कराओ। लेकिन कुछ मैटर होते हैं जो नहीं जा पाते, ठीक है। आज ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो तो बड़ी बन गई होगी, पता नहीं कितनी बड़ी कितनी मिनट की बनी होगी। तो ऑनलाइन सर्विस मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर फ्लैश फाइल होनी ज़रूरी है और जब भी आप ऑनलाइन सर्विस ले सकते हो। बहुत से बंदे बोलते हैं कि ऑनलाइन सर्विस है क्या, कैसे करते हैं, कैसे नहीं कराते। तो आज मैंने ये मैटर सबको समझा दिया और सभी भाइयों के लिए ये गिफ्ट था, मैंने जो बताया है। ये गिफ्ट हैं 5 UMT के MMC हार्डवेयर टूल हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी आपकी कृपया से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं तो और इससे भी बड़ा अच्छे लेवल का गिव अवे करूँगा, जो आपको फ़ायदा मिलेगा और जीतने का कुछ इस चैनल से सब्सक्राइब करने का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जय हिंद।